Welcome students. This video is important for BA first year students. Today I will be discuss the summary of chapter. Chapter name is The Responsibility of Young Men, was written by former PM Lal Bahadur Shastri ji. So I will be start. Whatever your station in future life, you should first of all think of yourselves as citizen of this country. This confers on your certain rights which are guaranteed by the constitution, but it also subject you to certain responsibilities which also have to be clearly understood. लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं और आपको भारत के जो संविधान है उसने आपको राइट्स दिए हैं। राइट्स के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी आपको कुछ आपके कर्तव्य हैं उनको भी आपको समझना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनके अनुसार ही अपना जीवन में उन्हें लागू करना चाहिए। आवर इज डेमोक्रेसी यानी हमारा लोकतंत्र विच enjoins freedom to the individual, but this freedom has to be subjected to number of voluntary restraints. restraints का मतलब होता है मजबूरी। have to be exercised and demonstrated in everyday life, यानी हमें अपने जो स्वतंत्रता दी है, लोकतंत्र ने हमारे जो संविधान ने जो हमें दी है उसे हमें अच्छी प्रकार से अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और जो जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं जैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और उनसे कैसे देश ग्रो करे, अच्छे अच्छे नियम उनको अपने जीवन में और अपने देश के लिए अच्छा उसके उन्हें लागू करना चाहिए। ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज़ द वन हु ओबेज द लॉ वट एवर देर इज policemen अराउंड और नोट, एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग इज सिविक ड्यूटीज़, यानी कोई पुलिस वाला आपके पास है या नहीं है, आपको अपने देश का कानून और देश के संविधान के नियम है वो मानने चाहिए और अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। इन द ओल्डन डेज sense of self restraint and discipline was inculcated by the combined effort of the family and the teacher, यानी हम मिलजुल कर कंबाइंड एफर्ट मेहनत से ही, प्रयास से ही अपने टीचर्स और फैमिली के साथ मिलकर ही अपने देश को एक अच्छा देश बना सकते हैं, अपने देश के कानून को मानकर, अपने देश को संविधान को मानकर। The economic stress of present day life unfortunately do not leave enough time to the parents look after the children, यानी आर्थिक तनाव के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों की देख रेख सही से नहीं कर पा रहे हैं। इन द एजुकेशनल institutions the number have grown so large as take away the benefits which used to accrue formally by personal contact between the teacher and the taught, यानी जो शिक्षण संस्थान है वो अपने ग्रो कर रहे हैं और बेनिफिट वो उनको मिल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन है वो कम होता जा रहा है। इनविटेबल our young students are often left much to their own resource. Often this creates problem which we all know about. This is an important aspect which needs thorough examination. The responsibility of our young citizens is great. In my views, in my view, every station in life is important in itself. लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी का हर एक फेज़ है वो इम्पोर्टेंट है। Work has its own dignity and there is a great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability, यानी अपनी योग्यता के अनुसार सभी को अपना बेस्ट देना चाहिए कि जिससे देश अच्छी प्रकार से ग्रो करे। वट एवर द ड्यूटीज़ वी शुड अप्लाई आवर सेल्फ विद द सिंसियरिटी एंड डिवोशन, यानी हमें अपनी ड्यूटीज़ सिंसियरली उनको निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य को, जिससे देश
के विकास में हेल्प हो सके, ऐसे काम हमें करने चाहिए। Such an approach, apart from being good in itself, also has the added advantage of the opening avenues for further advancement. We have to see whether we have done our own job well before thinking of criticizing anybody else। यानी हमें अपनी ड्यूटी है वो अपने लॉयल्टी के साथ हमें करनी चाहिए। All too often we succumb to the temptation of decrying others without bothering to look to ourselves. Never forget that loyalty यानी हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और वफादारी को नहीं छोड़ना चाहिए। लॉयल्टी, since one cannot weigh it in terms of what one receives, it is essential to remember that the entire country is one and that anyone who fosters or promotes separatism or फेसिपेरियस का हिंदी अर्थ होता है विभाजित करना। टेंडेंसी इज नॉट आवर ए ट्रू फ्रेंड, यानी जो हमें विभाजित करने की कोशिश करे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है। व्हाट आई हैव सेड stems from a desire to see that the youth of our country prepares itself in a disciplined, यानी हमारे युवा को, देश के युवा को प्रिपेयर रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, मैनर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने जो कर्तव्य है उनको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ऑफ टुमारो, ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड नॉट बाय ग्रेटनेस ऑफ ए फ्यू, यानी एक लोकतंत्र कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही सस्टेन अच्छा नहीं रह सकता, बट द कोऑपरेटिव्स एफर्ट ऑफ मैनी, यानी सभी के सहयोग से एक लोकतंत्र को अच्छा बनाया जा सकता है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन योर हैंड्स एंड एज द ओल्डर जनरेशन कंप्लीट देयर टास्क द न्यू वंस कम्स अलोंग टू टेक देयर प्लेस। लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो पुरानी जनरेशन है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, अब युवाओं के हाथ में है बागडोर देश की कि कैसे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली वो देश का विकास करें। इफ़ दे आर वेल एक्विपेटेड एज इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन, द कंट्रीज फ्यूचर विल बी ब्राइट इन डीड, यानी युवाओं के हाथ में है कि कैसे वो अपने देश का वास्तव में सुनहरा भविष्य बनाते हैं। एट ए टाइम व्हेन यू आर एट थ्रेशोल्ड ऑफ ए न्यू पीरियड इन योर लाइफ, आई वुड अर्ग यू टू प्ले योर रोल विद कॉन्फिडेंस, यानी युवाओं से कह रहे हैं कि आप अपना रोल है वो कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ निभाएं। और पोजीशन विद रिगार्ड टू सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक ब्रॉड टर्म है जिसका भारत की प्रस्तावना में, संविधान में भी जिसका मेंशन किया गया है। इसका अर्थ होता है कि सभी धर्म एक समान हैं, और यूरोप में इसका बेसिकली अर्थ होता है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं, यानी रिलीजन अलग है और स्टेट अलग है। सो आई विल स्टार्ट। आवर पोजीशन विद regard to secularism is known so well that it hardly needs any reiteration. It is embodied in our constitution, which ensure equal respect for all religion and equal opportunity for all citizens, यानी सभी धर्म एक समान है और सभी को एक समान अवसर मिलता है। और यहाँ भारत के संविधान में किसी के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे कास्ट के आधार पर हो। ये भारत का संविधान बहुत अच्छी मेंशन करता है ये बात। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, द फेथ विच दे प्रोफेस, इन स्पाइट ऑफ ए सीमिंग डाइवर्सिटी देयर इज फंडामेंटल यूनिटी, यानी जो भारत में एकता में विभिन्नता है वो भारत की सबसे अच्छी खूबसूरती मानी गई है पूरे विश्व में। विच वी ऑल चेरिश एंड इट हैज़ टू बी our constant endeavor to maintain and strengthen this unity, यानी हमें जो अपनी एकता है इसे बनाए रखना है, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं। The country can progress only if it does away completely with vociferous
tendency and emerges as an integrated whole. And it is in the field of education that the seed of secularism has to be shown at the earliest stage. यानी लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा में ही उन्हें सेकुलरिज्म शब्द जो है वो पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे उन्हें इस सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ पता लगेगा कि सभी धर्म एक समान है और सभी धर्मों को एक समान भारत देश मानता है। सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नेचर्ड एज इट ग्रोज। तो ये लेसन का एंड है। दिस इज़ द लेसन ऑफ समरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।